Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all on the platform of Qaidazm Online Academy. Students, as you know کہ یہ ہمارا MPT preparation کا فری سیشن چل رہا ہے اور آج ہماری اردو کی سیکنڈ کلاس ہم نے اس کا آغاز اردو سے کیا ہے اور آج ہماری اردو کی سیکنڈ کلاس ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سب جو ہے وہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پچھلی کلاس میں ہم نے سٹارٹ لیا تھا حروف تہجی سے. ہم نے حروف تہجی کو دیکھا تھا کہ جو الف المدہ بے وغیرہ یہ حروف ہوتے ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ان حروف کے ملنے سے ہمارے پاس الفاظ بنتے ہیں. جب یہ حروف ہمارے پاس ملتے ہیں تو ہمارے پاس الفاظ بنتے ہیں. الفاظ ہمارے پاس دو طرح کے بنتے ہیں. جب ہمارے پاس حروف کے ملنے سے کوئی لفظ بنتا ہے اور وہ کوئی معنی دے رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. اور جب ہمارے پاس حروف ملتی ہیں لفظ بنتے ہیں لیکن وہ لفظ کوئی معنی نہیں دے رہے ہوتے، بے معنی لفظ بنتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈینٹس ان کو مہمل کہتے ہیں. جب ہمارے پاس کوئی بھی بے معنی لفظ بنتا ہے تو اس کو مہمل کہتے ہیں. اس کی مثال پانی، وانی، روٹی، ووٹی، بات چیت. تو اس میں جو پانی، وانی میں پانی ہے وہ آپ کے پاس کلمہ ہے اور جو اس کے ساتھ وانی ہوگا یہ آپ کے پاس مہمل ہوگا. اس طرح کے اسٹوڈینٹس بات چیت میں جو آپ کے پاس بات ہوگی وہ کلمہ ہوگی اور جو چیت ہوگی وہ آپ کے پاس مہمل ہوگا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کلمہ کی اقسام کو اور ہم نے دیکھا تھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں. کون کون سی ہیں؟ کلمہ کی 3 اقسام ہمارے پاس اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں. ایک کو اسم ذات کہتے ہیں اور دوسری کو اسم صفت کہتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس ہم نے دیکھا تھا کہ استعمال کے لحاظ سے بھی اسم کی 2 اقسام ہیں. یہ اسم کی بنیادی اقسام ہیں لیکن استعمال کے لحاظ سے بھی اسم کی 2 اقسام ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اسم معرفہ اور دوسری کو اسم نکرہ. ایک ہمارے پاس اسم معرفہ ہے اور دوسری ہمارے پاس اسم نکرہ ہے. اسٹوڈینٹس یہاں تک ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں دیکھا تھا، یہ ایک کوئک ریکیپ ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا. آج ہم نے جو ہے وہ اس سے آگے شروع کرنا. اسٹوڈینٹس جس طرح آپ انگلش میں دیکھتے ہیں کہ کامن ناؤن ہوتے ہیں، پراپر ناؤن ہوتے ہیں، اسی طرح اردو میں بھی اسم نکرہ اور اسم معرفہ ہوتے ہیں. جو آپ کے پاس پراپر ناؤن ہوتے ہیں، خاص نام ہوتے ہیں، خاص نام ہو کسی چیز کا، کسی جگہ کا، اسٹوڈینٹس وہ آپ کے پاس اسم معرفہ ہے. اور جو کوئی بھی عام نام ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، جگہ کا، وہ آپ کے پاس اسٹوڈینٹس اسم نکرہ ہوتا ہے.
तो स्टूडेंट्स अगर हम मिसालें देखते हैं इसम मारफा की और इसम नकरा की, तो जो आपके पास एक खास नाम है, जैसे हम कहते हैं, लेट्स सपोज कोई नाम ले रहे थे जिसे हम कहते हैं लाहौर, कि मुझे लाहौर जाना है, तो यहाँ पे जो लाहौर है ये इसम मारफा होगा, प्रॉपर नाउन होगा। और अगर आप कहते हैं कि मुझे शहर जाना है, तो जो आपके पास शहर होगा वो आपके पास कॉमन नाउन होगा। इसी तरह जब आप स्पेसिफाई करके नाम लेते हैं अली, सना, तो ये आपके पास इसम मारफा हो जाते हैं। और जब आप लड़का लड़की कहते हैं तो ये आपके पास इसम नकरा होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जो कुछ इसमें पढ़ रहे हैं ये आपके एमसीक्यूज हैं, ये आपके पहले पेपर में आ चुके हैं। ये सारी चीजें आपने करनी है, इसमें से कोई भी चीज आपने स्किप नहीं करनी। यहां तक आपको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? हमने देखा कि इसम की बुनियादी दो इकसाम, इसम जात है, इसम सिफत है। उसके बाद हमने देखा कि इसम के इस्तेमाल के लिहाज से दो इकसाम है, एक को हम इसम नकरा कहते हैं और दूसरी को हम इसम मारफा कहते हैं। फिर हमने देखा इसम नकरा और इसम मारफा की मिसालों को, कि जो भी खास नाम होगा वो इसम मारफा होगा और जो आम नाम होगा वो आपके पास इसम नकरा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं डे स्टूडेंट्स। हम देखते हैं कि आपके पास इसम मारफा की भी आगे इकसाम है। इसम मारफा की 6 इकसाम है आपके पास। इसम मारफा की भी 6 इकसाम है। वो कौन कौन सी हैं जी? सबसे पहली है, सबसे पहली है आपके पास इसम अलम। इसम अलम है। उसके बाद दूसरी है आपके पास इसम जमीर। तीसरी आपके पास है इसम इशारा। चौथी है आपके पास डियर स्टूडेंट्स इसम मौसूल। इसम मौसूल। पांचवी है इसम इस्तेफाम। इसम इस्तेफाम। और आखिरी है इसम तनकीर। इसम मारफा की 6 इकसाम है। कौन कौन सी हैं? इसम अलम, इसम जमीर, इसम इशारा, इसम मौसूल, इसम इस्तेफाम और इसम तनकीर। अब डे स्टूडेंट्स हम अगर इनको वन बाय वन देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसम अलम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार एक या दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं। इसम अलम से मुराद होता है वो इसम जो किसी शख्स के खास नाम को जाहिर करे, खास नाम को जाहिर करे। जैसे आप कहते हैं शायर मशरक, जैसे आप कहते हैं गालिब, आपने कहा शायर मशरक, तो ये आपके पास इसम अलम है जो किसी खास नाम को जाहिर करेंगे। इसम अलम की डियर स्टूडेंट्स आपके पास इकसाम है। इसम अलम की भी आपके पास इकसाम है। कितनी इकसाम है? इसम अलम की 5 इकसाम है।
कौन कौन सी हैं? एक है खिताब, दूसरी है लकब, तीसरी है कुनियत, चौथी है तखल्लुस, और पांचवी है उर्फ। ये स्टूडेंट्स, लेकिन हम इनको देखें तो खिताब क्या होता है? ये स्टूडेंट्स, वो नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, वो नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाता है उसको खिताब कहते हैं। जो हुकूमत की, इसमें आपने ये वर्ड याद रखना है कि खिताब वो है जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, किसी काबिलियत किसी खूबी की बिना पे जो नाम हुकूमत देती है उसको खिताब कहते हैं। और जो नाम लोगों में मशहूर हो जाता है, जो कौम की तरफ से दिया जाए, वो आपके पास लक़ब होता है। जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है वो खिताब है, और जो कौम दे देती है वो लक़ब होता है। लक़ब और खिताब में स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूजन होती है कि खिताब कौन सा होता है और लक़ब कौन सा होता है। खिताब वो होता है जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, जैसे शम्सुल उलमा, रुस्तम जमा, ये आपके पास हुकूमत खिताब देती है। और जो कौम देती है वो आपके पास लक़ब होता है, जैसे कौम ने कायदे आजम का लक़ब दिया, जैसे कायदे मिल्लत, कलीमुल्ला, रूउल्ला। तो ये बेटा आपके पास लक़ब है। उसके बाद होती है कुनियत, वो नाम जो माँ बाप बेटे या किसी ताल्लुक की वजह से पुकारा जाए, जैसे इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा, बिनते हवा, हवा की बेटी। तो जो किसी ताल्लुक, माँ बाप बहन भाई, किसी ताल्लुक की वजह से जो नाम दिया जाता है वो आपके पास कुनियत होती है। तखल्लुस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स मुख्तसर नाम जो मुख्तसर नाम जो नाम शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करते हैं, मुख्तसर सा नाम, वो तखल्लुस होता है। जैसे मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब, तो गालिब आपका तखल्लुस था। जैसे मीर तकी मीर में मीर जो है वो मीर तकी मीर का तखल्लुस है। इसी तरह वो नाम जो या तो वालिदैन बचपन ही से बच्चे का प्यार से नाम रख देते हैं, या असल नाम बिगड़ जाता है, या फिर और किसी इंसान की खूबी या नक्स की वजह से कोई नाम मशहूर हो जाता है, मोहब्बत, अकीदत, नफरत, हकारत की वजह से जो कोई नाम पड़ जाता है, वो आपके पास उर्फ होता है। जैसे रशीद से शीदा कहने लगते हैं, जैसे मिट्ठू कहते हैं। तो ये आपके पास उर्फ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा आज, हमने देखा कि इसम की इस्तेमाल के लिहाज से दो इकसाम है। एक आपके पास इसम मारफा है और एक इसम नकरा है। इसम मारफा की 6 इकसाम देखी हमने। उनमें से एक थी इसम अलम। इसम अलम की आगे हमने डियर स्टूडेंट्स 5 इकसाम देखी हैं। इसम अलम की हमने आगे 5 इकसाम देखी हैं।
हमने देखा खिताब जो हुकूमत की तरफ से मिलता है। लकब जो कौम देती है। और कुनियत जो माँ बाप बहन भाई किसी ताल्लुक की वजह से नाम मशहूर हो जाता है। एक हमने देखा तखल्लुस को, जो शायर अपने नाम के मुख्तसर सा लगाते हैं शायरी में। और एक हमने देखा उर्फ को। तो ये जो है आपके पास इसम अलग की 5 इकसाम हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, इसम जमीर है। वो इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। इसम जमीर क्या है? कि वो इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। जैसे हम कहते हैं अली लाहौर गया। अली ने वहां जॉब की। अली ने नौकरी शुरू की। अली वक्त पर दफ्तर जाता है, वक्त पर वहां से सारे काम खत्म करता है। तो हमने बार बार अली का इस्तेमाल किया। तो अब हम चाहते हैं कि हम बार बार अपने फिक्रे में अली का इस्तेमाल ना करें। तो इसकी जगह एक बार पहले तो हम लिख देंगे अली लाहौर गया। उसके बाद जो होगा उसकी जगह हम लिखेंगे वो उसने वहां नौकरी शुरू की, या वो वक्त पर दफ्तर जाता है, वो वक्त पर वहां से आता है, वो वक्त पर वहां पर सारे काम खत्म करता है। तो ये जो हम अली की जगह पर जो भी लगाएंगे इसम, वो आपके पास इसम जमीर होगा। इसम जमीर के लिए स्टूडेंट्स 3 किस्में हैं। इसम जमीर की 3 इकसाम है। कौन कौन सी हैं? जमीर फाइली है। जमीर मफऊली है। और जमीर इजाफी है। तो स्टूडेंट्स, वो इसम जमीर जो किसी फेल का फाइल रही हो, वो जमीर फाइली कहलाते हैं। और जो मफूल की जगह इस्तेमाल होते हैं वो मफूली होंगे। और वो जो कभी मुजाफ इलेह बनकर इस्तेमाल होते हैं वो आपके पास इजाफी होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप कहते हैं वो, तो ये आपके पास फाइल की जगह पर इस्तेमाल होगा, ये फाइल ही होगा। इसी तरह आप कहते हैं तू तुम मैं, जो आप फाइल की जगह पर इस्तेमाल करेंगे ये आपके पास जमीर फाइल ही होंगे। इसी तरह जो आप मफूल की जगह पर इस्तेमाल करेंगे वो जमीर मफूल ही होंगे। जो आप मफूल की जगह पर इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास जमीर मफूल ही होंगे, जैसे कि उसे, उन्हें, तुझे, मुझे, हमें। ठीक है, ये आपके पास मफूली होंगे जो मफूल की जगह पे इस्तेमाल होंगी। और वो जो कभी मुजाफ इलेह बनकर आ जाते हैं वो आपके पास, जैसे उसका, उनका, मेरा, हमारा, ये आपके पास इजाफी होते हैं। तो डे स्टूडेंट्स, हमने इसम ज़मीर की 3 इकसाम देख। हमने देखा इसम मारफा की 6 इकसाम है। उनमें से एक इसम अलम हमने देखी। हमने देखा इसम अलम की 5 इकसाम है, उनको हमने देखा। उसके बाद हमने देखा इसम ज़मीर।
अब हम देखते हैं इसम मौसूल को। डियर स्टूडेंट्स, वो इसम जो किसी जुमले के साथ लगाए बगैर उसके मायने समझ ना आए, जैसे जो कोई, जो कुछ, जो चीज, ये जब तक किसी जुमले में नहीं आएंगे तो इनकी कोई समझ नहीं आएगी। जो कुछ, जो चीज, ये अकेले कोई भी मतलब नहीं देंगे, लेकिन जब ये किसी जुमले में आएंगे तो इनका मतलब समझ आने लगेगा। इसे इसम मौसूल कहते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, इसम इशारा है। इसम इशारा कहते हैं किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए। इशारे भी दो तरह के किए जाते हैं, एक दूर की चीज के लिए इशारा किया जाता है और एक करीब की चीज के लिए इशारा किया जाता है। अगर दूर की चीज होगी आपके पास डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या कहेंगे कि वो चीज मुझे पकड़ाएं, वो किताब मुझे दें, जो दूर होगी। लेकिन जो नजदीक होगी, जो करीब होगी, आप कहेंगे कि ये किताब मुझे पकड़ाएं, ये चीज मुझे दें। तो ये और वो इसम इशारा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कब? जब हमारे पास कोई चीज दूर पड़ी होगी, दूर की चीज के लिए हम वो करेंगे, और जब नजदीक की चीज होगी तो हम ये करेंगे। इसी तरह इसम मारफा की एक किस्म है इसम इस्तेफाम। इसम इस्तेफाम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस्तेफाम का मतलब होता है बात पूछना या समझना। तो इसके लिए जो इसम इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इसम इस्तेफाम कहते हैं, जैसे कौन, किन, किस, कितना। तो ये सारे आपके पास इसम इस्तेफाम आते हैं। कितना, कौन, ये सारे जो है वो आपके पास इसम इस्तेफाम है। इसी तरह एक और भी इसम मारफा की किस्म है इसम तनकीर। इसम तनकीर कौन से होते हैं? वो इसम होते हैं जो किसी गैर मुअय्यन शख्स के लिए बोले जाते हैं। जो मुअय्यन नहीं होता, गैर मुअय्यन शख्स होता है, जैसे किसी, ठीक है, कुछ, कोई। तो ये आपके पास इसम तनकीर होते हैं जो गैर मुअय्यन शख्स के लिए बोले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसम मारफा की इकसाम को देखा है। हमने देखा कि इसम मारफा की 6 इकसाम है। इसम मारफा की 6 इकसाम है, जिनमें हमने देखा इसम अलम है, इसम जमीर है, इसम मौसूल है, इसम इशारा है, इसम इस्तेफाम है और इसम तनकीर है। उसके बाद हमने देखा कि इसम अलम की 5 इकसाम है। खिताब है, लकब है, कुनियत है, उर्फ है, तखल्लुस है। उसके बाद हमने देखा इसम जमीर को, और हमने देखा कि इसम जमीर की 3 इकसाम है। जमीर फाइली है, जो फाइल की जगह इस्तेमाल होता है। मफूली है, जो मफूल की जगह इस्तेमाल होता है। और जमीर इजाफी है, जो कि मुजाफ इलैह बनकर आते हैं। उसके बाद हमने देखा इसम मौसूल को, कि ये ऐसे इसम होते हैं जो अकेले तो इनकी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब ये जुमले में इस्तेमाल होते हैं तो ये अपनी समझ देते हैं। उसके बाद हमने देखा इसम इशारा को, कि जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इशारे हमने दो तरह के देखे हैं। इसम इशारा दो तरह के, एक दूर के लिए, एक नजदीक के लिए है। जो दूर के लिए वो है और नजदीक के लिए ये है। उसके बाद हमने देखा इसम इस्तेफाम को। इस्तेफाम का मतलब ही होता है पूछना, सवाल करना। तो जो इस, इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, इसम पूछने के लिए, सवाल करने के लिए, उन्हें इसम इस्तेफाम कहते हैं। फिर हमने देखा इसम तनकीर को।
کہ جو غیر معین شخص کے لیے بولے جاتے ہیں، کچھ کوئی وغیرہ، یہ آپ کے پاس اسم تنکیر ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس کا جو ہیلپنگ مٹیریل ہوگا وہ آپ کو واٹس ایپ کمیونٹی میں مل جائے گا۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمیونٹی کو لازمی جوائن کریں۔ آپ کی جب یہ ہمارے پاس اسم کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کا ایک کوئز بھی لیا جائے گا۔ تب تک آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی نوٹس بھی بناتے رہیں گے۔ ہم آپ کو جو ہے وہ اس وائٹ بورڈ پہ اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود لکھا کریں، اپنے نوٹس بنایا کریں، تاکہ آپ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے چیزوں کو کر سکیں، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لکھنے سے بھی یاد ہو جاتی ہیں۔ تو نیکسٹ کلاس تک آپ نے اسے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔